آپ نے یقیناً ایڈمز پیک یعنی آدم کی چوٹی کا نام ضرور سنا ہوگا، جہاں آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان مشہور ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ایک دلچسپ انداز میں۔ جی ہاں، ہم آپ کو آج سے تقریباً 650 سال پہلے ماضی میں لے جائیں گے، جب ابن بطوطہ نامی ایک عظیم مسلمان سیاح نے اپنا مشہور زمانہ سفر نامہ لکھا اور اس سفر میں خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کے لیے اپنے سفر کا احوال بھی لکھا ہے۔ میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان پیڈیا، an informative channel۔ ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن بطوطہ ہے۔ ابن بطوطہ ایک بربر قبیلے کے علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن و فقہ، تاریخ و ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 22 سال کی عمر میں حج کرنے اور مدینہ شریف کی زیارت کے لیے پہلا سفر کیا۔ اس وقت ان کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ ان کا یہ سفر پوری دنیا کے سفر میں بدل جائے گا اور وہ ایک عظیم مسلمان سیاح کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ ابن بطوطہ نے تقریباً 29 سال مسلسل سیاحت میں گزارے اور ناظرین یہ ذہن میں رہے کہ ابن بطوطہ نے اپنا یہ سفر کولمبس سے 200 سال پہلے اور مشہور یورپین سیاح مارکو پولو سے 3 گنا زیادہ سفر طے کیا۔ ایک اندازے کے مطابق ابن بطوطہ نے تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کرتے ہوئے موجودہ دور کے 40 سے زیادہ ممالک کا سفر طے کیا۔ 29 سال کے اس عظیم سیاحتی سفر کے بعد وہ بالآخر اپنے آبائی وطن مراکش پہنچے اور وہاں پہنچ کر سلطان ابو عنان کی ہدایت پر اپنے سفر کی عظیم داستان محض اپنے حیرت انگیز یادداشت پر مرتب کی اور اس کا نام تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار رکھا، جسے ہم ابن بطوطہ کا سفر نامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آخری عمر میں ابن بطوطہ ایک شہر کے قاضی مقرر ہو گئے۔ آپ کی وفات 1368 عیسوی میں تقریباً 64 سال کی عمر میں ہوئی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کے سفر کا احوال کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا سفر شروع ہوا تو ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو راستہ جانتا ہو۔ مالدیپ سے کرناٹک تک کا فاصلہ 3 دن کا ہے۔ ہم 9 دن سمندر میں سفر کرتے رہے۔ 9ویں دن جزیرہ سیلون، جو اب سری لنکا کہلاتا ہے، پہنچ گئے۔ بہت دور سے ہمیں سرندیپ کا پہاڑ نظر آیا، جس کی چوٹی دھوئیں کے ایک ستون کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی معلوم ہوتی تھی۔ جب ہم ساحل کے قریب پہنچے تو ملاحوں نے کہا کہ یہ اس راجہ کا علاقہ نہیں ہے جہاں تاجروں کے جہاز آزادی سے آتے جاتے ہیں۔ یہ راجہ ایری چکرورتی کا علاقہ ہے جو بہت ظالم ہے اور سمندروں میں لوٹ مار کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہاں لنگر انداز نہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن جب ہوا تیز ہو گئی اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں جہاز ڈوب نہ جائے تو میں نے جہاز کے کپتان سے کہا کہ مجھے ساحل پر اتار دو، میں راجہ سے حفاظت کا وعدہ لے آتا ہوں۔ کپتان نے مجھے ساحل پر اتار دیا۔ میں ساحل پر پہنچا تو کافر میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں کرناٹک کے سلطان کا رشتہ دار ہوں اور دوست بھی ہوں، راجہ سے ملنے آیا ہوں اور راجہ کے لیے تحفے لایا ہوں۔ وہ یہ سن کر راجہ کے پاس گئے اور اس کو یہ خبر دی۔ راجہ نے مجھے بلا بھیجا۔ میں اس سے ملنے بٹالہ گیا، جو اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے۔ اس کے چاروں طرف لکڑی کی فصیل ہے اور لکڑی ہی کے برج بنے ہیں۔ پورے ساحل پر دار چینی کے درختوں کی لکڑی کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں، جو پہاڑی چشموں سے بہہ بہہ کر آ جاتی ہیں۔ کرناٹک اور ملبار کے لوگ اسے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں وہ راجہ کو اور یہاں کی عورتوں کو کپڑا وغیرہ تحفے میں دے دیتے ہیں۔ یہاں سے کرناٹک تک کا فاصلہ 1 دن اور رات کا ہے۔ جب میں راجہ چکرورتی کے پاس گیا تو اس نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے مجھ سے باتیں کی۔ وہ فارسی زبان جانتا تھا۔ اس نے کہا کرناٹک کے سلطان سے میری دوستی ہے، تم اور تمہارے ساتھی جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، کوئی خوف نہ کریں، سب میرے مہمان ہیں۔ میں راجہ کے پاس 3 دن ٹھہرا
वो हर रोज पहले से ज्यादा मेरी ताज़ीम करता। जब मैंने उसको उन मुल्कों का जहाँ मैं गया था हाल सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ। एक दिन मैं उसके पास गया तो देखा कि मोतियों का ढेर लगा है जो उसके इलाके में गोताखोर समंदर में से निकाल कर लाए थे। मोती परखने वाले भी बैठे थे, वो छाट कर अच्छे मोती एक तरफ रखते जाते थे। राजा ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी मोती निकलते देखे हैं? मैंने कहा, हाँ, जजीरा कैस और जजीरा कश में मैंने गोताखोरों को समंदर में गोता लगाते और मोती निकालते देखा है। राजा ने चंद मोती उठाए और मुझसे पूछा, क्या वहाँ इतने बड़े मोती होते हैं? मैंने कहा, नहीं, वो मोती छोटे होते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो मोती जो उसने उठाए थे मुझे दे दिए। फिर उसने कहा, शर्माओ मत, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। मैंने कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी एक ही ख्वाहिश है और वो ये कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ की ज़ियारत करूँ। सैलोन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बाबा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मामा कहते हैं। राजा ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हें वहाँ भिजवा दूंगा। मैंने जहाज़ के कप्तान से कहा कि वो कर्नाटक चला जाए क्योंकि मैंने राजा से इजाज़त ले ली थी और उसने कह दिया था कि वो मुझे अपने जहाज़ में कर्नाटक भिजवा देगा। लेकिन जहाज़ के कप्तान ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो मेरे बगैर नहीं जाएगा, चाहे इसमें 1 साल ही क्यों ना लग जाए। मैंने राजा से इसका जिक्र किया तो राजा ने कहा, तुम इत्मीनान से ज़ियारत के लिए जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारा जहाज़ ठहरा रहेगा और जहाज़ के लोग मेरे मेहमान होंगे। राजा ने कोहे आदम के सफ़र के लिए मेरे लिए एक डोली मंगवाई और उसे उठाने के लिए मजदूर दिए। 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए जो हर साल कदम शरीफ की ज़ियारत करने जाते थे। उनके अलावा 3 बढ़मन, 10 आदमी अपने मुलाजमों में से और 15 मजदूर सामान उठाने के लिए भी मेरे साथ कर दिए। पानी इस रास्ते में खूब मिलता है, इससे ले जाने की जरूरत नहीं हुई। सफर के पहले दिन हमने एक दरिया के किनारे पर पड़ाव डाला, उसे हमने बांस की बनी हुई एक कश्ती में बैठकर पार किया। फिर हम चले तो मीनार मंडली पहुंचे। ये एक अच्छा शहर है, यहाँ राजा चक्रवर्ती की अमलदारी खत्म हो जाती है। मीनार मंडली में जोरदार दावत हुई। बछड़े का गोश्त, चावल, मुर्गी और मछली और दूध से हमारी तवाज़ु की गई। इस शहर में खरासान का रहने वाला एक मुसलमान हमें मिला जो बीमारी की वजह से यहाँ ठहर गया था, वो भी हमारे साथ हो लिया। यहाँ से चलकर हम बंदर सलावत पहुँचे। ये एक छोटा सा शहर है। इसके बाद हमें एक जंगल मिला जिसमें बहुत से पहाड़ी चश्मे थे। यहाँ हाथी भी थे, लेकिन ये हाथी परदेसियों और ज़ायरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सब एक बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला बिन खफीफ की वजह से है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए ये रास्ता खोला। इससे पहले काफिर यहाँ से मुसलमानों को गुजरने नहीं देते थे, ना उनके साथ खाते थे, ना लेन देन करते थे। शेख अब्दुल्ला बिन खफीफ का वाकया ये है कि जब वो अपने साथियों के साथ यहाँ आए तो उनके साथियों ने हाथी के बच्चे को मारकर उसका गोश्त खा लिया। शेख ने गोश्त नहीं खाया। रात हुई तो हाथी वहाँ आए जहाँ शेख और उनके साथी सो रहे थे। उन्होंने एक एक करके सबका मुंह सूंघा और शेख को छोड़कर सबको कुचल कर मार डाला। शेख को एक हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बिठा लिया और आबादी में छोड़ गया। बस उस वक्त से काफिर मुसलमानों की इज्जत करने लगे। अब वो उनको अपने घरों में ठहराते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं और हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। वो शेख अब्दुल्ला बिन खफीफ का बहुत एहतराम करते हैं और उन्हें शेख कबीर के नाम से याद करते हैं। यहाँ से हम एक शहर में पहुँचे जो कंकार कहलाता है। ये सैलोन के सबसे बड़े राजा की राजधानी है। ये शहर 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में एक बड़ी झील के किनारे आबाद है। इस झील में याकूत पाए जाते हैं, इसलिए इसे झीले याकूत कहते हैं। शहर के बाहर शेख उस्मान शिराजी की मस्जिद है और वहीं उनका मज़ार भी है। कंकार के राजा और यहाँ के लोग इन शेख का बहुत एहतराम करते हैं और उनकी कब्र की जियारत को आते हैं। ये शेख कदम शरीफ को जाने वालों की रहबरी भी करते थे। जब उनके हाथ पांव काट दिए गए तो उनकी औलाद ये काम करने लगी। उनका एक हाथ और एक पांव सिर्फ इसलिए काट दिया गया था कि उन्होंने गाय ज़िबह कर ली थी और हिंदुओं का कायदा है कि जो शख्स गाय ज़िबह करता है वो उसको ज़िबह करते हैं या गाय की खाल में रखकर जला देते हैं। शेख के एहतराम की वजह से सिर्फ उनका एक हाथ और एक पांव काटा गया था और उनकी गुजर बसर के लिए चंद बाजारों का महसूल भी मुकर्रर कर दिया गया था। कंकार के राजा के पास एक सफेद हाथी है। मैंने इसके सिवा और कहीं सफेद हाथी नहीं देखा। ये राजा त्योहार के दिन उस पर सवार होकर निकलता है। सुर्ख याकूत, जिसे बहरमान या शबे चराग कहते हैं, इस शहर में पाया जाता है। बाज याकूत दरिया से निकलते हैं और बाज जमीन को खोद कर निकाले जाते हैं। ये एक सफेद शाखदार पत्थर में मौजूद होते हैं जिन्हें तराश कर याकूत निकाल लेते हैं। बाज याकूत जर्द होते हैं जिन्हें पुखराज कहते हैं और बाज नीले
जो नीलम कहलाते हैं। बड़े और कीमती याकूत बादशाह को पेश किए जाते हैं जो वो कीमत देकर खरीद लेता है। बाज याकूत मुर्गी के अंडे से भी बड़े होते हैं। कंकार से चलकर हम एक गार में पहुंचे जो एक वली के नाम पर उस्ता महमूद लोरी का गार कहलाता है। यहाँ से हम चले तो एक झील पर पहुंचे। ये बंदरों की झील कहलाती है। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ बंदर बहुत होते हैं। इन बंदरों का रंग स्याह और उनकी दुमें लंबी होती हैं। नर बंदरों के इंसानों की तरह दाढ़ियाँ होती हैं। यहाँ से आगे चले तो एक गार मिला जो राजा सुबक का गार कहलाता है। ये राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस गार में आ बैठा था। यहाँ हमने उड़ने वाली जोंके देखी। ये दरख्त पर बैठी रहती हैं। जब कोई इंसान करीब जाता है तो ये उड़कर उसके जिस्म से चिमट जाती हैं और उसका खून पी जाती हैं। यहाँ के लोग लीमू साथ रखते हैं। जहाँ जोंक चिमटती है वहाँ लीमू का रस निचोड़ देते हैं। जोंक गिर पड़ती है, फिर एक लकड़ी के चाकू से जिस्म का वो हिस्सा जहाँ जोंक चिमटी थी खुरच देते हैं। कोहे सरनदीप दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से एक पहाड़ है। हमने इसे सैलोन आते हुए जहाज पर से देखा था। उस वक्त हम सैलोन से 9 मंजिल दूर थे। जब हम इस पहाड़ पर चढ़े तो बादलों की वजह से हमें नीचे का इलाका नजर नहीं आया। इस पहाड़ पर सदा बहार दरख्त है जो रंग रंग के फूलों से लदे रहते हैं। उनके पत्ते कभी नहीं गिरते। यहाँ से कदम चरीत तक जाने के 2 पहाड़ी रास्ते हैं। एक को बाबा का यानी आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का यानी हव्वा अलैहिस्सलाम का रास्ता कहते हैं। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं। जो मामा के रास्ते से जाते हैं उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उन्होंने ज़ियारत की ही नहीं। बाबा का रास्ता दुश्वार है और उस पर चढ़ना मुश्किल है। पहले के लोगों ने पहाड़ को काटकर सीढ़ियां बना दी थी और उनके साथ लोहे की मीखे गाड़ कर उनमें जंजीरें बांध दी थी ताकि पहाड़ पर चढ़ने वाला उन्हें पकड़कर चढ़ सके। ये 10 जंजीरें हैं। 2 नीचे हैं जहां से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू होती है, फिर एक के बाद एक 7 जंजीरें हैं और आखिरी यानी 10वीं जंजीर जंजीर शहादत कहलाती है कि जब इंसान वहां पहुंचता है और नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कलमा शहादत पढ़ने लगता है। जब इस जंजीर से गुजर जाते हैं तो एक नाहमवार सा रास्ता मिलता है। 10वीं जंजीर से गारे खिजर तक 7 मील का फासला है। ये गार एक सतह मुर्तफा पर वाक़या है। इसके नजदीक पानी का एक चश्मा है जिसमें मछलियां हैं, लेकिन इन्हें कोई पकड़ता नहीं। करीबी रास्ते के दोनों तरफ 2 हौज हैं जो पहाड़ काट कर बनाए गए हैं। ज़ायरीन अपना तमाम सामान यहीं गार के पास छोड़ देते हैं और मजीद 2 मील ऊपर चढ़कर चोटी तक पहुंचते हैं जहां कदम शरीफ है। कदम शरीफ बाबा आदम के पाँव का निशान है जो एक सख्त स्याह पत्थर पर बना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव एक पत्थर में धंस गया था जिससे कि निशान पड़ गया। यहाँ नाज़रीन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को ये मौजिज़ा अता फरमाया था कि उनके पैरों के नीचे आने वाला पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाता था और उस पत्थर पर उनके पाँव के निशान सख्त हो जाते थे। ये निशान 11 बालिश लंबा है। कदीम ज़माने में चीन से लोग ज़ियारत को यहाँ आते थे। वो अंगूठे वाला हिस्सा पत्थर में से तोड़ कर ले गए और शहर जैतून में एक इबादत गाह में ले जाकर रख दिया। अब चीन में लोग दूर दूर से इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। जिस पत्थर में कदम शरीफ का निशान है इसमें 9 गढ़े हैं। हिंदू ज़ायरीन इन गढ़ों में सोना, याकूत और मोती डाल जाते हैं। ज़ियारत के लिए आने वाले फ़कीर जब गारे खिजर पहुँचते हैं तो जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़कर चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि इन गढ़ों में मौजूद जो माल है वो ले लें। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें थोड़ा सा सोना और कुछ कीमती पत्थर इन गढ़ों में पड़े मिले। ये हमने अपने राहबर को दे दिए। यहाँ का कायदा है कि ज़ायरीन गारे खिजर में 3 दिन ठहरते हैं और सुबह शाम कदम शरीफ की ज़ियारत करने ऊपर आते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। जब 3 दिन पूरे हो गए तो हम मामा हुआ के रास्ते से वापस आए। पहाड़ के दामन में एक बड़ा पुराना दरख्त है। किसी ने इस दरख्त के पत्ते गिरते हुए नहीं देखे। बहुत से जोगी इन पत्तियों के गिरने के इंतजार में यहाँ पड़े रहते हैं। कहा जाता है कि जो इस दरख्त का पत्ता खा लेता है वो दोबारा जवान हो जाता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। इस पहाड़ के नीचे वो झील है जिसमें से याकूत निकलते हैं। इस झील का पानी बिल्कुल ही नीला है। यहाँ पर इब्ने बतूता का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ की ज़ियारत के सफ़र का अहवाल ख़त्म हुआ।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے نوازیں. ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں, اور ہاں, نیچے موجود بیل کے آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں, جس کی وجہ سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.